اس وقت وزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ پاکستان کی کیبنٹ نے، کشمیری لیڈرشپ نے اور ساری اپوزیشن کی لیڈرشپ نے بھی اس نئے نقشے کی تائید کی ہے۔ یہ جو نقشہ ہے جو ہم پاکستان کا پولیٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، یہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کا جو اصولی موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے۔ اور جو ہندوستان نے 5 اگست پچھلے سال ایک غاصبانہ اور غیر قانونی قدم اٹھایا تھا کشمیر میں، یہ اس کی نفی کرتا ہے۔ اور آج سے سارے پاکستان میں جو ہمارا آفیشل نقشہ ہوگا پاکستان کا، وہ یہ جو آج پاکستان کی کیبنٹ نے پاس کیا ہے، اب سے یہ اسکولوں میں، کالجز میں، انٹرنیشنلی یہ نقشہ آیا کرے گا ہمارا۔ اب میں چاہوں گا کہ ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی یہ آپ کو یہ جو نقشہ ہے جس میں جو چینجز ہوئے ہیں یہ اب آپ کے سامنے رکھیں۔ شاہ محمود قریشی۔ شکریہ وزیر اعظم۔ پوری قوم کو مبارکباد، خاص طور پہ وزیر اعظم آپ کو اور آپ کی حکومت کو مبارکباد میں دینا چاہوں گا کہ یہ اعزاز اللہ نے آپ کو دیا کہ ایڈمنسٹریٹو نقشے تو پاکستان کے پہلے بھی آتے رہے، 49 میں آیا، 76 میں آیا، لیکن پہلی مرتبہ قوم کے سامنے ایک ایسا نقشہ رکھا گیا جو ان کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے، جیسے آپ فرما چکے ہیں۔ اور یہ ہے وہ نقشہ جو بند کمروں کے اجلاسوں میں پاکستان اپنا موقف پیش کیا کرتا تھا، آج پوری قوم کے سامنے کھلے عام آپ کی حکومت اپنا موقف پیش کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سبز رنگ میں، یہ وہ علاقہ ہے جو کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ وہ علاقہ ہے جو متنازع ہے اور جس کا ہم حل تلاش کرنے کی پوری قوم خواہش بھی کرتی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے۔ ہندوستان نے 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات کے بعد ایک نقشہ جاری کیا اور اس نقشے میں انہوں نے دنیا کے ساتھ ایک مذاق کیا، اپنی قوم کے ساتھ مذاق کیا کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اپنے علاقے میں سمو دیا، جو بالکل سلامتی کونسل کی قرارداد کے برعکس ہے۔ پاکستان نے آج واضح کر دیا ہے کہ ہم ان عزائم کو مسترد کرتے ہیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ متنازع ہے، حل طلب ہے، اور انشاءاللہ یہ اس کا حل کشمیری اور پاکستانی لوگوں کی عین امنگوں کے مطابق، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکلے گا، جس کا وعدہ ہندوستان کر چکا ہے۔ اور اس نقشے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو یہاں درج کر دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک رائے شماری ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہونا ہے۔ ایک دوسری چیز جو اس نقشے نے واضح کی ہے وہ ہے پاکستان کا جو ہمارا جو موقف ہے اس کی اور وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں تک ایک لائن تھی اور آگے ایک ڈاٹڈ لائن دکھائی جاتی تھی، جو تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ جو جموں کشمیر ہے وہ ابھی اس میں ابہام ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل جو بارڈر ہے اس کو واضح طور پر یہاں منشن کر دیا ہے، اور یہ ایک واضح تفریق ہے کہ یہ علاقہ جو حل طلب ہے اور یہ علاقہ جو ہماچل پردیش جو ہندوستان کا حصہ ہے اس میں واضح نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں جو کہ لائن آف کنٹرول ایک جو ملٹری ڈیمارکیشن ہے یہ آپ کے سامنے
रेड डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है, माजी के नक्शों में ये यहाँ ख़त्म हो जाया करती थी। NJ 9842 जिसको कहती है, यहाँ ख़त्म हो जाती थी। इस नक्शे में इसको बाकायदा जो आपका चीन का जो आपकी सरहद है उसके साथ मिला दिया गया है और इससे वाज़े कर दिया गया है कि सियाचिन कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। और जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ और जो उन्होंने वहाँ इल्लीगल ऑक्यूपेशन की हुई है उसको हम चैलेंज कर रहे हैं और अपना राइट जो है इस इलाके पर क्लेम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो इस नक्शे में बड़ी वाज़े होती है और हमारे दो तरफ़ा मज़ाकरात में वो हल तलब रही, मज़ाकरात का हिस्सा रहा, और वो है साउथ। आप आ जाइए यहाँ, सर क्रीक का इशू हिंदुस्तान के साथ चलता रहा है हमारा। सर क्रीक में हिंदुस्तान जो दावा करता था, हमने इस नक्शे में उसकी नफ़ी कर दी है और हमने कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है, जो हमारा जो सरहद है वो ईस्ट ऑफ द बैंक, ईस्टर्न बैंक की तरफ है, और हिंदुस्तान का मौक़िफ़ था कि ये वेस्ट की तरफ जाती है। बज़ाहिर तो वो देखने में मामूली चीज़ लगती थी, लेकिन अगर आप इसके आप असरात देखें तो हिंदुस्तान बड़ी चालाकी से पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि कई सैकड़ों किलोमीटर पर मुहित हड़प करने की कोशिश कर रहा था, और पाकिस्तान ने इस वजाहत से कह दिया कि हरगिज़ नहीं, हमारा ये मौक़िफ़ है और हमने मौक़िफ़ को नक्शे में परो दिया है। इसी तरह आप आगे देखें कि पहले जो यहाँ फाटा का इलाका था, ज़ाहिर होता था, फाटा लिखा जाता था। अब क्योंकि फैसला हो गया और वो फाटा का इलाका, अर्स्टवाइल फाटा का इलाका अब खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हो गया है, तो अब उसको खैबर पख्तूनख्वा सूबे का हिस्सा दिखाया गया है, और ये भी जो तिश्तगी है वो दूर हो गई है और अफ़गान की सरहद जो है वो वाज़े आपको यहाँ दिखाई दे रही है। फिर एक और चीज़ आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ मेंशन किया गया है अनडिफाइंड फ्रंटियर। ये वो इलाका है, अभी आपने देखा कि अभी स्टैंड ऑफ हुआ चीन और हिंदुस्तान के दरमियान। उनका तनाज़ा आज से नहीं, काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। पाकिस्तान का भी इस पर एक मौक़िफ़ रहा है। इसकी यहाँ हमने वजाहत कर दी है और मशावरत के बाद हमने वजाहत कर दी है कि जब ये कश्मीर का फ़ैसला होगा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक, तो उस वक्त की जो सॉवरेन स्टेट्स हैं वो इसको हल करेंगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हल करेगा। अब ये जो हमने जो नक्शे पे चीज़ें शो की हैं, इसकी वजाहत आप ये देखें, एनोटेशंस हैं हमने यहाँ नक्शे में डाल दी हैं। जो कोई अबहाम या उसको मिसकंस्ट्रू करने की कोशिश करता है तो वो भी ना कर सके। खुशाइन बात यह है कि आज पूरी कौम इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप पर मुत्तफिक है। वज़ीर आज़म ने आज काबीना को एतमाद में लिया और काबीना ने इस नक्शे को इंडोर्स किया है। कश्मीर की क़यादत को एतमाद में लिया गया और कश्मीर की क़यादत ने कल इस नक्शे को पूरी तरह इंडोर्स किया। और इससे बढ़कर जो पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको भी आज दफ्तर ख़ारजा में एतमाद में लिया गया और उन्होंने भी इस मौक़िफ़ की, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की, पाकिस्तान की तारीख़ी मौक़िफ़ की तायद की है। ये एक इतना बड़ा कदम है जो कि वाज़े पैगाम देता है हिंदुस्तान को, वाज़े पैगाम देता है कश्मीर के उन निहत्ते जवानों को जो अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम कल भी उनके साथ थी, आज भी उनके साथ है, और ये हमारी मंजिल की अक्कासी कर रहा है। और जिस तरह के वज़ीर आज़म ने और काबीना ने मंजूरी दी है उस शाराए कश्मीर को शाराए श्रीनगर के नाम से मंसूब किया है। हमारी मंजिल श्रीनगर है, हमारी मंजिल वो ख्वाब है जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने देखा और उस ख्वाब को इस नक्शे में इमरान खान ने परो दिया।
कौम को मुबारक हो। आज एक तारीखी दिन है। शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी। मैं फिर से वाज़ेह कर दूं कि कश्मीर का सिर्फ एक हल है, और वो हल है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अंदर, जो वाज़ेह तौर पे कश्मीर के लोगों को वो राइट देती है, उनका हक है कि वो एक वोट के ज़रिए फ़ैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये जो उनका राइट था, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो वर्ल्ड कम्युनिटी ने उनको दिया था, वो अभी तक नहीं मिला। और हम वाज़ेह तौर पे सारी दुनिया को कहना चाहते हैं कि इसका सिर्फ वही हाल है। कोई और कोशिश की जाएगी जिस तरह हिंदुस्तान ने किया 5 अगस्त को, जो उन्होंने जुल्म किया, पहले से जुल्म करते आ रहे थे, लेकिन कानूनी तौर पे उनका आर्टिकल 370 ख़त्म करके उनका स्टेटस ख़त्म किया। अब उनकी पूरी कोशिश है कि वहाँ बाहर से लोग ला के सेटल करें ताकि कश्मीरी अपने इलाके के अंदर अक़लियत बन जाए, माइनॉरिटी बन जाए। इससे कभी ये मसला हल नहीं होगा। हल एक ही है और उसके लिए हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट हर फोरम के ऊपर ये कहेगी कि ये अगर आपने कश्मीर का हल करना है तो वो जो दुनिया ने वादा किया था कश्मीर के लोगों से 1948 में यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत। मैं आखिर में आप सबको फिर से मुबारक देता हूँ। मैं आज बड़ा खुश हूँ। ये एक इतनी देर से, जब से हम पैदा हुए हैं, हम कश्मीर का सुनते आए हैं और उम्मीद लगाई लोगों ने कि ये इनको कब इंसाफ मिलेगा, कब इनको हक मिलेगा और कब कश्मीर पाकिस्तान के साथ आएगा। ये जो नक्शा बना है, ये मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरा ज़िंदगी का ये तजर्बा है कि अपनी मंजिल पे पहुँचने से पहले एक इंसान अपने ज़हन में वो तसव्वुर करता है कि वो जा किधर रहा है। मैंने ज़िंदगी में जो भी काम किया, 9 साल की उम्र से फ़ैसला किया क्रिकेटर बनना है, तसव्वुर करता था टेस्ट क्रिकेटर बनना, फिर एक जद्दोजहद की उसके लिए, फिर अल्लाह ने वो पहुँचाया, फिर जो भी मंजिल, ऑलराउंडर दुनिया का बेस्ट बनना है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतना है, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, नमल यूनिवर्सिटी बनाना है, तहरीक इंसाफ को एक दिन इस मुल्क की क़यादत पे लेके आना है। ये सारा पहला इंसान ज़हन में सोचता है। जिस तरह इंसान ज़हन में सोचता था मैंने चाँद पे पहुँचना है, तो कोई सब लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अल्लाह ने इंसान को बड़ी ताकत दी है। और हम पाकिस्तानियों को, हमारे जो शुरू से है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, इंशाअल्लाह ये जो मैप है ये एक पहला कदम है और हम पूरी पॉलिटिकल जद्दोजहद करेंगे। हम मिलिट्री सॉल्यूशंस में नहीं मानते, हम पॉलिटिकल सॉल्यूशंस में मानते हैं। हम, जिस तरह मैं कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस को हम बार बार याद करवाएंगे कि आपका एक वादा था जो आपने पूरा नहीं किया, और इंशाअल्लाह ये हमारी जद्दोजहद रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ रहेगी। सारे पाकिस्तानी इसके लिए जद्दोजहद करें, जिस तरह के कश्मीर के लोग कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। और मुझे अल्लाह पे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम इस मंजिल पे एक दिन पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान के सियासी नक्शे की तकरीब रुनुमाई जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आज के बाद ये नया नक्शा मुल्क भर में इस्तेमाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि तमाम कश्मीरी क़यादत और मुल्की सियासी क़यादत ने इस नक्शे की तायद की है। हम इसके सियासी हल पर यकीन रखते हैं। मकबूजा कश्मीर का मसला सियासी तौर पर हल करेंगे। भारत ने 5 अगस्त के बाद गैर कानूनी तौर पर आइन में भी तब्दीलियाँ की। अक़वाम मुत्तहिदा को बार बार बताएंगे कि कश्मीरियों पर भारतीय काबिज़ फ़ौज की जानिब से जुर्म व इस्तब्दाद जारी है। पाकिस्तान के सियासी नक्शे की तकरीब रुनुमाई से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह तारीख़ी इक़दाम उठाया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान के सियासी नक्शे में शामिल किया गया। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। हमेशा हर फोरम पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर यकजान दो कालिब हैं। आज के बाद ये नया नक्शा मुल्क भर में इस्तेमाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था तमाम कश्मीरी क़यादत और मुल्की सियासी क़यादत ने इस नक्शे की तायद की है। भारत ने 5 अगस्त के बाद गैर कानूनी तौर पर आइन में तब्दीलियाँ की। कश्मीरियों पर जबर और जुल्म का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा को बार बार इस हवाले से आगाह करेंगे।